Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let us start the chapter 14. This is the chapter 14. Chapter name is Water. Let us learn about water. Different states of water, water problems, rain, water harvesting, source of water, importance of rainfall, water conservation. These are the topic we have to read here. Firstly, water. Water is essential for the extents of life. Without water, there would be no life on the earth. Just like other living organism, we also need to consume water to survive. However, we also need the water for many other activities such as cooking, washing, cleaning, and irrigation. Water is covers about third quarters of 3 quarters of the earth's surface. अगर हम अर्थ को फोर्थ अर्थ में डिवाइड करें तो थ्री जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, वाटर के होंगे. About 37% of this waters is salty. Waters found in the ocean which is not suitable for the human consumption. Less than 3% earth water is fresh water. We need fresh water to survive. But about the 70% of the fresh water, about 2% of the total of water of the earth is frozen in the glaciers and ice caps. About the 29% of the fresh water, about 0.6% of the total water is locked deep into the ground. Only the about 0.3% of the fresh water, about 0.009% of the total water on the earth is available for our use in form of river, lake and springs. That makes water a precious resource. इससे क्या बन जाता है, हमारा वाटर बहुत ही कीमती बन जाता है. नेक्स्ट आते हैं सोर्स ऑफ वाटर. कैसे कैसे वाटर मिलता है हमें. फ्रेश वाटर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द टू सोर्सेज, सरफेस वाटर और द अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर. ठीक है, फ्रेश वाटर में कहाँ मिल सकता है, सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस से, या तो फिर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उससे, या सबसॉइल वाटर बोल सकते हैं. सरफेस वाटर क्या है, सरफेस वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज ऑन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. किस टाइप का हो सकता है, रेन वाटर. रेन वाटर इज कंसिडर टू बी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर बिकॉज इट इज़ यूजली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज़. तो रेन वाटर सबसे फ्रेश वाटर होता है और नेचुरल ही प्योर होता है. ठीक है, प्योर करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये फर्स्ट शावर जो है, बट द फर्स्ट शावर्स विल कम डाउन टू सरफेस कंटेन डस्ट पार्टिकल, जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन द एटमॉस्फेयर. और पहली जो बारिश होती है वो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारा डस्ट होता है. इसलिए पहली बारिश में हम लोग नहीं भीगना चाहिए और ना ही उस पानी को स्टोर करना चाहिए. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट बारिश होती है उससे हमें स्टोर करना चाहिए. इसमें कम इम्प्योरिटीज़ होती हैं और प्योर होता है वो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिवर एंड लेक वाटर. River and lake waters. The waters in the rivers and lake from the rains and melting of the snow of the on the mountain. Water flow down mountain and goes into the river. On its way, it dissolves some soluble salt and carries the substance impurities. It also contains the waste materials that are discharged into the rivers by factories. Rivers waters may also contain germs that causes dangerous disease like jaundice, dysentery, cholera, and typhoid. Sea water. Streams and rivers finally flow into the seas. They add the dissolved impurities like salt also along with the water into the sea. Due to the presence of a large amount of common salt, sea water is salty to taste and is called saline water. Being the highly saline or the salties, the sea waters or the ocean's waters is not fit for the drinking or for other purpose like the agriculture or the industrial needs. Next आते हैं अंडरग्राउंड वाटर और द subsoil water. Some of the rainwaters that are fall on the surface seep through the soils and goes down under the surface. Ultimately, these waters is stopped by the some hard, non-porous rocks and collected there. These
these reservoirs of the waters collected over the hard non-porous rocks below the surface is called the ground water. क्या होता है, जो हमारा वाटर है, जो रेन वाटर होता है, वो धीरे धीरे हमारे क्या बोलते हैं सॉइल से स्टिल्ड होके, मतलब छन के स्टिनिंग करके वो धीरे धीरे क्या होता है नीचे पोरस रॉक में, मतलब जो छेद वाले रॉक होते हैं उसके अंदर जाता है और धीरे धीरे वो कलेक्ट होने लगता है नॉन पोरस रॉक के ऊपर, और वो धीरे धीरे जब स्टोर होने लगता है तो वो क्या बन जाता है अंडरग्राउंड वाटर और द ग्राउंड वाटर और द अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. और जो लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाटर का अंडरग्राउंड, उसको वाटर टेबल बोलते हैं. अंडरग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट बाय डिगिंग वेल्स डीप टिल इट्स रीच्ड द वाटर टेबल. जब तक वाटर टेबल तक नहीं पहुँचते उतना मतलब गड्ढा खोद के एक सीधे उसमें वेल बनाते हैं, कुआं बनाते हैं. नेक्स्ट है हैंड पम्प्स और द ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज टू पम्प्स out the ground water. These ground water is used for the household, agriculture and industrial purpose. From where do we get water? कहाँ से हमें water मिलता है? In cities we get we get water from the taps, but this waters can also come from a lake or a river. Water from the natural sources contains many impurities. To make it fit for drinking, these impurities must be removed. Sedimentation, filtrations, aerations, and the chlorinizations are the various steps involved in the purification of the rivers or the lake water to make it fit for the drinking purpose. This purified rivers or the lake waters is supplied to all our taps through a network of water pipelines. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहले ये देखेंगे इस डायग्राम क्या करते हैं हम लोग. क्या करते हैं वाटर को अगर हम जब सीरीज में देते हैं तो कहाँ से कहाँ क्या होता है वाटर लेवल से उसको रिवर से क्या करते हैं कनेक्ट करके या तो पंप से कनेक्ट करके उसके बाद उसको सेडिमेंटेशन रिफाइनरी करके क्लोराइनाइजेशन करके तब हमारे घर में टैंक के थ्रू वो भेजा जाता है सप्लाई. सिटीज़ में ऐसा होता है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. अब देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर तो आपने पढ़ा ही है लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. वाटर एग्जिस्टिंग इन 3 फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस. Ordinarily water is in the liquid state, but when it is kept in the freezers or the refrigerators it freezes and form ice. Ice is a solid state of the water. When the heated water melted into the water vapors called steam, so the steam is the gaseous states of the water. तो आपने तीनों स्टेट याद होंगे आपको. Water can be changed from the one state to another by heating or the cooling. For example, ice से हम solid होता है तो अब हम क्या करें हीट को हीट दें तो हमारे आइस क्या हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसे ही फिर अगर वाटर को हम हीट दें तो क्या हो जाएगा वेपराइज होने लगेगा, वो स्टीम या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. स्टीम मतलब गैस. गैस को अगर हम क्या करें थोड़ा ठंडा वो दें सरफेस दें तो वो क्या हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा जिसमें वाटर फॉर्म करेगा लिक्विड में. ठीक है. कूलिंग फिर से दें वाटर को तो वो फ्रीजिंग हो जाएगा, फ्रीज कर देगा वाटर को, आइस फॉर्म कर लेगा. ठीक है. वेपराइजेशन ऑफ वाटर. You must have the observe that when we spread wet clothes on the rope or wires, they dried up after some times. Where does the water is in the cloth goes? तो आपको पता होगा जब आपके कपड़े क्या होते हैं गीले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्या बोलते हैं रोप में जो रस्सी होती है उसमें हम अपने कपड़े को क्या करते हैं टांग देते हैं. तो थोड़ी देर बाद वो क्या होने लगता है सूख जाता है. कैसे सूख जाता है द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ्स वेपरेट व्हेन इट्स रिसीव्ड हीट फ्रॉम द सन्स टू फॉर्म द वाटर पेपर. क्या होता है जैसे हीट मिलती है सन से वो धीरे धीरे वाटर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है वाटर पेपर में. दिस वाटर पेपर्स गोज इन टू द एयर. ये एयर में जाते हैं. सो व्हेन ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ्स एवपोरेट द क्लोथ ड्राइड अप. The process of changing water liquid form into the water vapor's gaseous form is called vaporizations of water. ठीक है. evaporations of water कहते हैं. इसको कहते हैं जो चेंज हो रहा है वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में. ठीक है. ड्यू टू
evaporations of a water, we can observe the following. Water spills on the ground, dried up and disappeared. पानी अगर ज़मीन पे गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वार्म एयर की वजह से वो धीरे धीरे एवोपरेट हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है. वाटर फ्रॉम द वेट रोड एंड puddles and the rooftops of the our house ड्राइड अप एंड डिसअपियर्ड. हमारे छत का पानी, हमारे रोड गड्ढों का पानी सारा कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे. जब गर्मी होती है तब जल्दी सूख जाता है और ठंडी होती है तो ऐसा नहीं हो पाता. सॉल्ट इज ऑब्टेन्स व्हेन द वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्टेड इन द शैलो पेट्स. द सी वाटर्स एवोपरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट. क्या होता है, सॉल्ट वाटर से मतलब सी का जो वाटर होता है उसको हम लेते हैं और उसको अच्छे से क्या कहते हैं एक जगह सेलोफिन बना के उसको डालते हैं पानी और उस पानी को एवोपरेट होने देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सॉल्ट हमें मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी पढ़िएगा. आपने इसे कंक्लूडिंग क्या निकलेगा ये देख लेते हैं. इसमें एम है टू नो द व्हाट मेक्स एवोपरेट फास्टर और स्लोअर. क्या हमें क्या फास्टर बनाएगा, क्या स्लोअर बनाएगा एवोपरेट करने के लिए. ठीक है, ये देखेंगे. उसके बाद एक्टिविटी का कंक्लूड है. वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग द डे टाइम्स द हीटिंग ऑफ द सन्स एवोपरेट फ्रॉम द सी वाटर फ्रॉम ओशन. वाटर से ओशन की तरफ ये क्या करती है, हीट करती है. नेक्स्ट है, आपने 5th क्लास में पढ़ा भी होगा. नेक्स्ट है ocean, river, lake, pond, field and other lands areas continuously to form vapors. तो क्या होता है, ये जो हीट होती है सन की वो एवोपरेट करता है वाटर कहाँ से, ओशन में, रिवर में, लेक से और ये सारी जगह से जहाँ पानी प्रेजेंट होता है और वेपर फॉर्म में कर देता है. These water vapors get mixed with the airs और द एटमॉस्फेयर. ये सारे वाटर वेपर कहाँ चले जाते हैं, एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं. However, the water evaporations of water is a slow process. Beside the evaporation of water, there is another process through which the water vapors get transformed into the air. This it is called the transpiration. Let us take a look at this process. Transpiration क्या होता है? The plants also need the water to grow. They take this water from the soil through their root. The excess water is released by the plant into the air as the water vapor through the stomata. This process is called transpirations. Transpirations क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वो होता है जो वाटर लेता है कहाँ से, सॉइल से लेता है रूट के थ्रू और वो अपने लीव्स में पहुँचाता है और वो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है. सो वी कैन से दैट द वाटर वेपर्स एंटर्स द एयर or the atmosphere through the two main process, evaporation and the transpiration. Second activity है to show the condensations of water vapors on cooling में कैसे कंडेंसेशन होता है वो देखने के लिए आप करिएगा. नेक्स्ट आता है on the cold winters mornings we can see the condense of water vapors into the water droplets. For example, क्या होता है, हम जो ठंडियों की सुबह उठते हैं तो हमें क्या दिखता है, कंडेंस वाटर दिखता है, मतलब हमें ओस दिखती है. ओस कैसे दिखती है, एग्जाम्पल टीनी ड्रॉप्स ऑफ द फ्यू ड्यू ऑन द लीव्स ऑफ अ ग्रास. क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो मिलती है हमारी ओस की वो कहाँ होती है, लीव्स के ऊपर, ग्रास के. ठीक है, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द योर कार्स एंड द विंडो ग्लास. थिक वाइट क्लाउड of a tiny water droplets fog near the grounds that reduce the visibility. और वाइट कलर का फॉग भी हमें दिखाई देता है विंटर के टाइम. क्यों दिखता है, क्योंकि ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कंडेंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड. कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड. The heating of the sun evaporates the water from water bodies like oceans, sea, rivers, lakes, etc. and converts it into the water vapors. The water vapors combines with the dust particle present in the air to form the clouds. These clouds are carried from one place to another by wind. When the temperatures and the pressure conditions are changed, the water vapors of a cloud can condense to form water. तो ये क्या है,
जो वाटर क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, जब हम हीट होता है वाटर पेपर अप क्या जाता है स्काई में जाता है, वो वाटर पेपर धीरे धीरे जब उसको ठंडा सरफेस मिलता है तो वो क्या बन जाता है, स्टीम क्लाउड का फॉर्म लेने लगता है। क्लाउड का फॉर्म लेता है, जब तक वो हैवी हो जाता है क्लाउड तो क्या होता है, जब वो कंडेंस होने के लिए और नहीं बचता है, उसमें अब नहीं हो पाता है कंडेंस, तो वो क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट में नीचे गिर जाता है। ठीक है, वाटर में फॉर्म हो जाता है फिर से। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिपिटेशंस। व्हेन द वाटर वेपर्स ऑफ द क्लाउड कंडेंस एंड फॉल डाउन टू द अर्थ as the rains, it is called precipitation. If the precipitations remains in the liquid form till it's reached the earth, we call it rain. ठीक है, जब वो प्रेसिपिटेट रिमेन करता है लिक्विड फॉर्म में तो उसको हम रेन बोलते हैं। इफ द वाटर ड्रॉप्स रिमेन्स हार्ड वाइल द फॉलिंग, इट वी कॉल इट्स स्नो। अगर जब वो रेन वाटर बहुत हार्ड हो जाता है तो उसको स्नो बोलते हैं। इफ द साइज ऑफ द वाटर पार्टिकल्स इज लार्जर, वी कॉल इट्स हेलस्टॉर्म्स। अगर क्या हो जाता है, वो थोड़े ज़्यादा बड़े साइज में हो जाते हैं और हार्ड होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे हेलस्टॉर्म्स या ओले कहते हैं। ठीक है, थर्स द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज वॉट लैंड फील्ड्स और द प्लांट्स गोज इन टू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर form the clouds and then the comes back to the ground as the rain, hails or snow. दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो आपने पढ़ा है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ अ वाटर ऑन द अर्थ। ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है जो अर्थ में होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल। क्या होता है, हमें रेनफॉल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सभी को ज़रूरत होती है, तो हम ये पढ़ेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे। मानसून की सीज़न को हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जिससे वो हमारे वाटर क्या हो पाए, हमारे अर्थ में बैक हो पाए, है ना। जितना कंडेंस एवोपरेट हुआ है वो वापस आएगा, तभी तो हमारे पास पानी आएगा। रेन ब्रिंग्स द रिलीफ बाय द कूलिंग द इन्वायरमेंट। रेन क्या लेके आती है, इन्वायरमेंट को ठंडा करती है, स्पेशली आफ्टर द हॉट समर डेज। फार्मर इन इंडिया depended on the arrivals of the monsoons for sowing their crops in the field। और arrivals होता है तब बारिश होती है, तब उस टाइम क्या बोलते हैं, अनाज लगा पाते हैं हमारे इंडिया के फार्मर्स। Rain fills lakes, ponds and the streams and raised the water table, so it's maintained the supply of water on the land। और जो रेन वाटर लेक और पॉन्ड सब जगह भरती है, पानी की जितनी भी एरिया है वो क्या होता है, वाटर टेबल भी ऊपर आ जाता है जब हमारे रेन से पानी आता है, तो मेंटेन करती है सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड। ठीक है, नाउ रीड दिस चैप्टर, complete your work. Thank you.